Very good morning, friends. Today we will discuss the Code of Civil Procedure 1908. There are certain specified sections only. You don't have to read the entire code, and there are certain sections, and there is one order 21, which we have to read. So, before we start reading Civil Procedure Code, let us see some of the sections of IBC where there is a reference to certain definitions, like decree, wherever it is mentioned. So decree word or decree holder, it is mentioned in section 3 subsection 10. Section 14(1)(a), it also talks of judgment, decree or order in court of law. 310 talks of decree holder. Then section 69(a), it talks of punishment for transactions defrauding creditors. So it includes conniving in execution of a decree. Section 171(3), it talks of proof of debt in case the creditor is a decree holder. So these are the various sections where there is a reference to either CPC or the terms used in CPC. So it is for this reason that they have included CPC in the syllabus. There could be various types of jurisdictions. Jurisdiction could be territorial, which means area-wise jurisdiction could be there. It could be a pecuniary jurisdiction, so value-wise. It could be subject matter-wise, like administrative, income tax, and labor tribunals. And it could be original and appellate jurisdiction. So first of all, we should be clear about the jurisdiction of our case. Next is, there could be various types of suits. So all suits of a civil nature, they are covered under Civil Procedure Code. Now, whether a particular suit is of a civil nature or not, we have to see. There could be matters relating to property, right of worship, right to share in offerings, damages for civil wrongs, specific relief, rent, restitution of conjugal rights, dissolution of partnership, accounts, damages for breach of contract, caste-related issues, purely religious matters, and dignity matters. So, barring the last three, all the above, they are suits of a civil nature which can be brought in a civil court. Section 9. Our syllabus starts with section 9. So section 9, what it says? It says courts to try all civil suits unless barred. I have written in red all except barred. So this is the only thing which you will read on the exam day. The court shall, subject to the provisions here contained, have jurisdiction to try suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. So, courts, they have jurisdiction to try all suits of a civil nature. Of course, we are talking about civil courts because we are studying the Civil Procedure Code. Excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Then there is an explanation 1. It says a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of the questions as to religious rites or ceremonies. So if there is a question regarding religious rites or ceremonies, that who has the right to perform those religious rites or ceremonies, as we found in Pehova or in Haridwar or in other religious places of prominence. So these questions, they are covered under civil suits. Explanation 2 is, for the purpose of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place. So whether or not there is any fees attached or whether or not such office is attached to a particular place,
right to property or to an office is contested, wherever it is contested, it is a suit of a civil nature. Stay of suits. Section 10. Doctrine of res sub judice. No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दो सूट्स चल रहे हैं, दोनों सूट्स में मैटर सेम है, ठीक है. जो सब्जेक्ट मैटर है इट इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम, और ऑलरेडी भी एक सूट चल रहा है. जैसे एक शादी आपकी पहले हो चुकी, मैंने मोनोगेमी वर्ड लिखा है, मोनोगेमी इसीलिए लिखा है कि उससे याद आ जाए आपको. एक शादी हो चुकी, दूसरे की मत सोचो, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, जो मैटर है वो सेम है, इट इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, पार्टीज भी सेम है, या बिटवीन पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other, चाहे उस कोर्ट में हो चाहे किसी और कोर्ट में हो, ठीक है. तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस. भाई एक मैटर, एक ही सब्जेक्ट मैटर है, पार्टीज भी सेम है, ठीक है, तो क्यों दोबारा उसको एंटरटेन करेंगे, ठीक है, चाहे किसी दूसरे कोर्ट में चल रहा हो. ये होता है स्टे ऑफ सूट. अगर ऐसा कोई चल रहा है तो स्टे हो जाएगा. कौन सा स्टे होगा? नेचुरली दूसरा स्टे होगा. डिपेंडेंसी ऑफ ए सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग सूट्स, ठीक है. तो लेकिन अगर कोई फॉरेन कोर्ट में चल रहा है तो फिर उस केस में हो सकता है, ठीक है. अगर फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो वो इंडियन कोर्ट में चल सकता है सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर. फॉरेन कोर्ट्स में जो है ये थोड़ी सी इसमें इनको एक्सेप्शन दी गई है, ठीक. आगे देखते हैं. कंडीशंस क्या है? दो सूट हैं, सब्जेक्ट मैटर सेम है, सेम पार्टीज है, पेंडेंसी बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट है और ड्यूअल कॉम्पिटेंस, ठीक है. तो ये है कंडीशंस फॉर सेक्शन 10. सेक्शन 11. सेक्शन 11 क्या कहता है? रेस जुडिकाटा. ऑलरेडी डिसाइडेड है एक मैटर. सेक्शन 10 में क्या था? एक चल रहा था, अभी डिसाइड नहीं हुआ था, दूसरा स्टार्ट हो गया. सेक्शन 11 में क्या है? एक मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है. तो जब एक मैटर डिसाइडेड है तो फिर दूसरा उसी केस में एंटरटेन ही नहीं करेंगे. नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, मैटर सेम होना चाहिए, डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए फॉर्मर सूट, पार्टीज भी सेम हो, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. ठीक, मैटर सेम है, पार्टीज सेम है, एक मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका, दूसरा ट्राई नहीं करेंगे. नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू. एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर्मर सूट का मतलब क्या है? फॉर्मर सूट वो जो पहले डिसाइड हो जाए, जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ उससे मतलब नहीं है. हो सकता है जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ वो अभी डिसाइड ना हुआ, जो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ सूट वो पहले डिसाइड हो गया, ठीक है ना. तो जो पहले डिसाइड हो गया उसको फॉर्मर सूट कहेंगे, ठीक है. एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कंपिटेंस ऑफ ए कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजंस एज टू राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट, ठीक है. तो राइट ऑफ अपील कहां पर है? उससे नहीं होगा, ठीक है ना. द कंपिटेंस ऑफ ए कोर्ट शैल बी डीम्ड डिटरमिन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजंस एज टू ए राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट. भाई कोई मैटर अपीलेबल है नहीं है, ठीक है ना, उस बात पे नहीं है. ये है कि अगर दो सूट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टीज सेम है, ठीक है, या जो क्लेम कर रहे हैं वो सेम है, एक डिसाइड हो चुका है, चाहे वो पहले इंस्टीट्यूट हुआ या बाद में इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है. जो पहले डिसाइड हो गया उसको फॉर्मर सूट कहेंगे. तो फॉर्मर सूट जो डिसाइडेड है, दूसरा सूट नहीं चल सकता, ठीक है.
एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहती है? एनी मैटर विच माइट एंड नॉट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच। तो जो भी हम डिफेंस ले सकते थे, ठीक है, या अटैक ले सकते थे जो भी फॉर्मर सूट में, वो मान लिया जाएगा कि डिसाइड हो चुका है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहती है? एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड। आपने रिलीफ, जो एक मैटर था उसमें आपने कोई रिलीफ क्लेम किया, वो आपको एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं हुआ, तो ये मान लिया जाएगा कि वो रिफ्यूज हो गया। तो इस ग्राउंड पर आप दूसरा सूट नहीं ला सकते कि जी ये वाला रिलीफ तो हमें मिला ही नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 6, वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पब्लिक राइट और ऑफ ए प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो अगर कोई पब्लिक राइट के लिए कोई सूट चल रहा है या फिर कोई प्राइवेट राइट है, वो क्लेम्ड इन कॉमन है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो जो भी लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं दे विल बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 7 क्या कहता है? द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution of the decree, ठीक है। तो ये execution of decree पर भी ये provisions हमारे लागू होंगे res judicata वाले, ठीक है। Question arising in such proceeding and a formal proceeding for the execution of that decree. Explanation 8 क्या कहता है? An issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको जुरिस्डिक्शन वाली स्लाइड दिखाई, ठीक है ना। तो जुरिस्डिक्शन वाली स्लाइड में क्या होता है, कई बार जैसे कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज होते हैं या कोर्ट्स लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाले होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जैसे, लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंट है to decide such issue, तो it shall operate as res judicata in a subsequent suit. Competence होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशंस क्या है, मोटा मोटा समझ लेते हैं। कंडीशंस फॉर res judicata, दो सूट्स हैं, एक एडजुडिकेटेड है, दूसरा पेंडिंग है, ठीक है। इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है, सेम पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, एंड कोर्ट विच डिसाइडेड द अर्लियर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट ऑल्सो, ठीक है। तो जिसने पहले वाला सूट ट्राई किया वो दूसरा सूट भी ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब हम जल्दी से दोबारा सेक्शन 10 वाली कंडीशंस भी देख लेते हैं। 10 और 11 में क्या फर्क है? 10 में भी दो सूट्स थे, सेम सब्जेक्ट मैटर था, सेम पार्टीज थी, लेकिन कोई भी डिसाइड नहीं हुआ था। 10 और 11 में यही फर्क है। ये क्या है, इसको कहते हैं रेस सबजुडिस और उसको कहते हैं रेस जुडिकाटा, ठीक है। तो रेस सबजुडिस में क्या है कि दोनों पेंडिंग है, ठीक है। तो एक अगर पेंडिंग है तो दूसरा ट्राई नहीं करेंगे, ये तो सेक्शन 10 कहता है। और सेक्शन 11 कहता है कि अगर एक डिसाइड हो चुका तो दूसरा आपका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। नो कोर्ट शेल ट्राई, वो यहाँ वर्ड ट्राई से ही शुरू होता है। नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू इन वो मैटर वगैरह, ठीक है। ये सारा मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये कंडीशंस है। इसके बाद में सेक्शन 26 और सेक्शन 27। सेक्शन 26 कहता है कि जो भी सूट आपने स्टार्ट करना है, देखिए ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है बेसिकली इट कंटेन्स द प्रोसीजर्स कि आपने कोर्ट में कैसे जाना है, कैसे प्लेंट आपको सबमिट करनी है, ठीक है, एफिडेविट देना है, उसके बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैसे होगा। बेसिकली इट इज ए प्रोसीजर पार्ट, तो सिविल प्रोसीजर कोड ही इसका नाम है। सेक्शन 26 इसमें कहता है, सिर्फ रेलिवेंट सेक्शन हम पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। सेक्शन 26 कहता है प्लेंट एंड एफिडेविट, जो भी सूट आप इनिशिएट करोगे उसमें सबसे पहले प्लेंट जाएगी, और इन सच अदर मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, और हर एक प्लेंट में फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, ठीक है, which shall be in the form and manner as prescribed under order 6 of rule 15A, ठीक है। सेक्शन 27, सेक्शन 27 क्या कहता है, मैंने देखो मोटा मोटा हाईलाइट कर दिया है कि जो जो मेन बातें हैं उतना ही आप याद कर लोगे तो काफी है। सेक्शन 27 कहता है अपीयर विद इन 30 डेज, एक सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया। देखो पहले तो सेक्शन 10 देख लिया जाएगा, ठीक है, कि पहले तो नहीं चल रहा, फिर सेक्शन 11 देख लिया जाएगा, कोई डिसाइड तो नहीं हो गया, ठीक है।
उसके बाद में प्लेंट आएगी, एफिडेविट आएगा और दूसरी पार्टी को समन इशू कर देंगे सेक्शन 27 में। तो वेयर सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served in manner prescribed on such day not beyond 30 days from the date of the institution of the suit। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर आपको सम्मन देनी है दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को। एक एपेलेंट हो गया, दूसरा डिफेंडेंट हो गया। अब जो अगले वाले सेक्शंस हैं बहुत ही आसान है। सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रेजिड्स इन अनदर स्टेट। आपने दिल्ली में केस फाइल किया, जो डिफेंडेंट है जो जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया वो यूपी में रहता, ठीक है, उस केस में कैसे सर्विस होगी ये सेक्शन 28 बताता है। तो सेक्शन 28 ये कहता है कि समन्स में बी सेट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट टू सच कोर्ट एंड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट। ठीक है, अभी आपने केस देखा होगा, वो पंजाब से किसी क्रिमिनल को लेके आए थे वहां पर यूपी में, ठीक है ना, तो वहां पर ये सब प्रोसीजर्स काम में आती है। द कोर्ट टू विच सच समन्स इज सेंट shall upon receipt thereof proceed as if it had been issued by such court। ठीक है, जिसको समन भेजा गया, दिल्ली कोर्ट में सूट फाइल हुआ, डिफेंडेंट रहता है यूपी में, ठीक है, तो यूपी कोर्ट जो है वो ऐसे प्रोसीड करेगा जैसे उसने खुद ही इशू किया हो, और फिर जो रिटर्न कर देगा समन्स टू द कोर्ट ऑफ इशू। कोर्ट ऑफ इशू यहाँ पर कौन है? दिल्ली है, ठीक है, टुगेदर विद द रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स विद रिगार्ड टू इट। तो वहां पर जो भी कार्रवाई उसके साथ में जो है समन्स जो है दिल्ली वाले कोर्ट को इशू कर देगा, जो कोर्ट ऑफ इशू। अगर लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है ना, तो ट्रांसलेशन भी जाएगा। ठीक है, मान लो कहीं कन्नड़ में चले गए, तमिलनाडु में चले गए, ठीक है, हिंदी। अगर लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशू इन द समन्स इज हिंदी और इन हिंदी और इंग्लिश, वेयर द लैंग्वेज ऑफ सच रिकॉर्ड इज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, shall also be sent together with the record sent under that। तो इसमें ट्रांसलेशन भी चला जाएगा। ठीक है, सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। अब इंडिया से बाहर अगर करने हैं तो क्या होगा? समन्सेस एंड अदर प्रोसेसेस इशूड बाय एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड। ठीक है भाई, कोई ऐसी टेरिटरी हो सकती है जहां पर इसके प्रोविजंस एक्सटेंड ना करते हो, या एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो उस केस में कैसे समन इशू होंगे? या तीसरा, एनी अदर सिविल और रेवेन्यू कोर्ट आउटसाइड इंडिया टू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर्ड द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन टू अप्लाई। ठीक है, बहुत सारे तो सिविल या रेवेन्यू कोर्ट्स आउटसाइड इंडिया होते हैं, वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि ये इस के प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन विल अप्लाई। ठीक है, दूसरे कौन से? सिविल या रेवेन्यू कोर्ट है एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड। कई जगह तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चला रही है, दूसरे ये तो एस्टेब्लिश या कंटिन्यूड है बाय द अथॉरिटी। तीसरे कौन से हैं? जहां पर ये नोटिफिकेशन किया गया है कि इसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे। और पहले कौन से? सिविल या रेवेन्यू कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पर ये प्रोविजंस इस कोड के प्रोविजन, कोड मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, इसके प्रोविजंस लागू नहीं होते। तो उन केस में क्या होगा? ये भेजे जाएंगे, मे बी सेंट टू द कोर्ट्स इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। तो जहां पर ये कोड एक्सटेंड करता है वहां पर भेजे जाएंगे और सर्व्ड होंगे एज इफ दे वर समन्सेस इशूड बाय सच कोर्ट्स। ठीक है, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है कि कोर्ट या तो खुद से on its own motion or on the application of any party make such orders as may be necessary regarding delivery and answering of interrogatories। कोई क्वेश्चनर भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए कह सकते हैं, या फैक्ट्स या डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस। तो उसके लिए जो भी कोर्ट ने ऑर्डर पास करने हो वो कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा समन्स इशू कर सकते हैं टू पर्सन्स हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जिनको एविडेंस देना है, या दे हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और सच अदर ऑब्जेक्ट्स एज अफोरसेड। ठीक है, तो उनको समन्स इशू कर सकते हैं या ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, कोई क्वेश्चनर भेज सकते हैं इस तरह से, या ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, या उनको कह सकते हैं कि भाई कोई भी आप जो है वो एफिडेविट से प्रूव करो। ठीक है, सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है समन्स टू विटनेसेस।
द प्रोविजंस इन सेक्शन 27, 28 एंड 29, ये तो पहले हो गए जो अपेलेंट एक्ट सन 27, 28 और 29। तो ये वाले जो प्रोविजन है ये समन्सेस को भी अप्लाई होंगे टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी में ये है कि कोई किसी को समन इशू किए, वो नहीं आता तो क्या होगा? वारंट इशू हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच या सेल हो सकती है, या फाइन हो सकता है 5,000 रुपए तक, या फिर उसको कैसे कहा जा सकता है कि भाई आप श्योरिटी दो फॉर अपीयरेंस, और अगर नहीं देता तो उसको सिविल प्रिजन में भेजा जा सकता है। ठीक, ये कहता है सेक्शन 32। उसके बाद सेक्शन 40, ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। अब वेर डिक्री इज सेंट फॉर एक्सिक्यूशन इन अनदर स्टेट, बेसिकली यहाँ पर जो है प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ आईबीसी। आईबीसी के हिसाब से ये वाले जो प्रोविजंस हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट, सेक्शन 40, वेयर डिक्री इज सेंट फॉर एक्सिक्यूशन इन अनदर स्टेट, इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एक्सिक्यूटेड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट। ठीक है, तो वहां पर जो उस स्टेट के रूल्स होंगे उस हिसाब से उसको एक्सिक्यूट किया जाएगा। रिजल्ट ऑफ एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड। अब जिस कोर्ट को भेजी है, ठीक है, वो सर्टिफाई करेगा जिसने डिक्री पास की। ठीक है, और वेयर द फॉर्मर कोर्ट फेल्स टू एक्सिक्यूट द सेम, द सर्कमस्टांसेस अटेंडिंग सच फेलियर। ठीक है भाई, एक कोर्ट ने डिग्री पास की, दिल्ली कोर्ट में सूट फाइल हुआ, दिल्ली कोर्ट ने डिग्री पास की, प्रॉपर्टी उस बंदे की है यूपी में। ठीक है, तो नेचुरली यूपी कोर्ट में भेजेगा उसको एक्सिक्यूशन के लिए डिग्री को। तो यूपी कोर्ट जो है उसमें बताएगा कि भाई एक तो ये है कि भाई वो बताएगा, ही विल सर्टिफाई टू द कोर्ट विच पास डिड द फैक्ट ऑफ सच एक्सिक्यूशन। वो सर्टिफाई कर देगा भाई दिल्ली कोर्ट जो आपने डिक्री हमें एक्सिक्यूशन के लिए भेजी थी वो हमने एक्सिक्यूट कर दी है, या अगर नहीं एक्सिक्यूट कर पाता तो सर्कमस्टांसेस बताएगा कि भाई किस वजह से वो एक्सिक्यूट नहीं हो पाई। ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट इन एक्सिक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिक्रीज। तो सेक्शन 42 ये कहता है कि कोर्ट की क्या पावर है इन एक्सिक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिक्रीज। तो जिस कोर्ट के पास भेजी है, द कोर्ट एक्सिक्यूटिंग ए डिक्री सेंट टू इट shall have the same powers in executing such decree as if it had been passed by itself। क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ है तो जो कोड की लैंग्वेज है वो भी बहुत सिंपल है, आराम से आपको समझ में आ सकती है। तो जिस कोर्ट के पास डिग्री भेजी गई है उसके पास वही पावर है जिस कोर्ट ने ये डिग्री पास की थी। ठीक है, ऑल पर्सन्स in disobeying or obstructing the execution of the decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree। ठीक है, कोई भी आदमी उसमें डिसोबे करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री तो उस पर पनिशमेंट हो सकती है, और पनिशमेंट वही वाला कोर्ट दे सकता है जिसके पास एक्सिक्यूशन के लिए डिक्री भेज दी गई, जैसे कि उसी ने डिक्री पास की हो। ठीक है, एंड इट्स ऑर्डर इन एक्सिक्यूटिंग सच डिक्री शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स in respect of appeal as if the decree had been passed by itself। ठीक है, without prejudice to the generality of the provisions of subsection 1, the powers of the court under that subsection shall include the following powers of the court which pass the decree। ठीक है, क्या क्या पावर्स? पहला, पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एक्सिक्यूशन टू अनदर कोर्ट। ठीक है, ये दूसरे कोर्ट को भी भेज सकता है। ठीक है, ये पावर्स ऑफ द ये पावर ऑफ कोर्ट इन एक्सिक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्रीज है, मतलब दिल्ली ने यूपी को भेजी, यूपी वाला आगे भी भेज सकता है। ठीक है, ये बताता है पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एक्सिक्यूशन इन अनदर कोर्ट। मान लो पता चले यूपी के उत्तराखंड में तो वहां भेजेगा। पावर टू एक्सिक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड जजमेंट डेटर। देखिए, दो पार्टीज होती हैं डिक्री में, एक होता है डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है, एक होता है जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर वो होता है जिसने पैसे देने हैं, डिग्री होल्डर है जिसने पैसे लेने हैं, मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अगर जजमेंट डेटर जिसने पैसे देने थे उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में डिग्री एक्सिक्यूट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ ए डिग्री। ठीक है, उसके पास अटैचमेंट ऑफ ए डिग्री की भी ऑर्डर करने की पावर है।
A court passing an order in exercise of the power specified in subsection 2 shall send a copy thereof to the court which passed the decree. ठीक है, तो जो भी ऐसे ऑर्डर पास करेगा इसकी उसको उस कोर्ट को भी ऑर्डर कॉपी भेज देगा जिसने डिग्री पास की थी। भाई दिल्ली कोर्ट ने यूपी कोर्ट को भेजी, अब यूपी कोर्ट उसको उत्तराखंड कोर्ट को भेज रहा है, तो यूपी कोर्ट दिल्ली कोर्ट को भी ये भेजेगा कि भाई मैंने उत्तराखंड कोर्ट को भेज दी है। ठीक है, या फिर ये जो है वो उसकी डेथ हो गई थी जजमेंट राइटर की जिसका आपने नाम लिखा था, तो मैंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में एक्सिक्यूट की है। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर ऑन द कोर्ट टू व्हिच डिक्री इज सेंट फॉर एक्सिक्यूशन एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। तो जिसको डिक्री एक्सिक्यूशन के लिए भेजी गई है उसकी पावर पर कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशन है? पहला, पावर टू ऑर्डर एक्सिक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। ठीक है, पहले बात तो ये है कि वो उसका एक्सिक्यूशन ऑर्डर नहीं कर सकता एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। तो जिसके फेवर में डिक्री थी उसके अगर उसने किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी तो उसके ऑर्डर पर आप एक्सिक्यूट नहीं कर सकते। पहला लिमिटेशन तो ये है। उसको वहां कहां से एक्सिक्यूट करानी पड़ेगी? ओरिजिनल कोर्ट से। ठीक है, इन द केस ऑफ ए डिक्री पास्ड अगेंस्ट ए फर्म, अगर फर्म के अगेंस्ट में कोई डिक्री पास हुई है तो पावर टू ग्रांट लीव टू एक्सिक्यूट सच डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन सच ए पर्सन एज इज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 50 ऑफ ऑर्डर 21। ठीक है, तो ये कौन सा रूल 21 में कौन सा 50 ऑर्डर है वो देख लेते हैं। क्या कहता है ये कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में है, एक मिनट में जरा ऑर्डर 21 निकाल लेता हूं। सब रूल 1 में कहता है ए बी और सी। ठीक है, तो इन द केस ऑफ ए डिक्री पास्ड अगेंस्ट ए फर्म, पावर टू ग्रांट लीव टू एक्सिक्यूट सच डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन सच ए पर्सन एज इज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी और सी। तो बी में कौन सा बताता है? बी में बताता है out of court to the decree holder by postal order or through bank wherein payment is evidence in writing। ऑर्डर 21 का रूल 50 है। रूल 1 पे आ गया। ये रूल 50 यहां बात करता है एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट द फर्म। ये क्या कहता है कि वेयर डिक्री हैव बीन पास्ड अगेंस्ट ए फर्म, एक्सिक्यूशन में बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, ये तो ए है, ये तो अलाउड है। दूसरा, अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज अपीयर्ड इन हिज ओन नेम अंडर रूल 6 और रूल 7 और हु हैज एडमिटेड ऑन द प्लीडिंग्स दैट ही इज और हु हैज बीन एडजस्ड टू बी ए पार्टनर। ठीक है, अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज बीन इंडिविजुअली सर्व्ड एज ए पार्टनर विद ए समन्स एंड ही हैज फेल्ड टू अपीयर। बेसिकली बात यह है कि अगर डिक्री फर्म के अगेंस्ट में तो पार्टनर के अगेंस्ट में एक्सिक्यूट नहीं हो सकती। बी और सी पार्टनर की बात करते हैं कि हु इज और हु हैज बीन एडजस्ड टू बी ए पार्टनर। ठीक है, सेक्शन 43 बात करता है एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स इन प्लेसेस टू व्हिच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। ठीक है, तो कोई कोर्ट ऐसा हो सकता है जहां पर ये जो डिक्री है वो वैलिड नहीं हो। ठीक है, आउटसाइड इंडिया हो सकता है। तो एनी डिक्री पास्ड बाय एनी सिविल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू व्हिच द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड। ठीक है, इंडिया में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर ये सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होता। और बाय एनी कोर्ट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया may, if it cannot be executed within the jurisdiction of the court by which it was passed, be executed in the manner herein provided within the jurisdiction of any court in the territories to which this court extends। तो जहां पर ये अप्लाई नहीं होता तो जहां पर अप्लाई होता वहां पर एक्सिक्यूट होगी। मोटा मोटा मतलब इसका ये है। ठीक है, सेक्शन 44 क्या कहता है? एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट्स इन प्लेसेस टू व्हिच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, the state government may by notification in the official gazette declare that the decrees of any revenue court in any part of India to which the provisions of this code do not extend or any class of such decrees may be executed in the state as if they had been passed by courts in that state। ठीक है, कुछ रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जहां पर सिविल प्रोसीजर के कोड के नियम लागू नहीं होते, तो उस केस में वो ये कह सकता है कि उस स्टेट में जो दूसरे कोर्ट्स हैं
ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे उन्होंने ही वो डिक्री पास की है। ठीक है, जी है। सेक्शन 44 ए क्या कहता है? एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। ठीक है, वेयर सर्टिफाइड कॉपी of a decree of any of the superior courts of any reciprocating territory has been filed in a district court, the decree may be executed in India as if it had been passed by the district court. ठीक है, क्या कहता है? execution of decrees passed by courts in reciprocating territory. तो where a certified copy of a decree of any of the superior courts of any reciprocating territory has been filed in a district court, the decree may be executed in India as if it had been passed by the district court. ठीक है, अगर सुपीरियर कोर्ट ने कोई डिग्री पास की है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में, वहां पर कोई वैसा कोर्ट है नहीं, भाई कहता है ना उसी कोर्ट के बराबर जाएगा, क्या होता है कि वैसा मान लो कोर्ट वहां है ही नहीं, वहां पर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वो डिग्री वैसे ही एक्सिक्यूट हो जाएगी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं पास की। इसका मतलब क्या है? हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट को भेजेगा, ठीक है, सेशन कोर्ट है सेशन कोर्ट को भेजेगा। मान लो वहां पर हाई कोर्ट है ही नहीं, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसको ऐसे ही एक्सिक्यूट करेगा जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास की। ये सेक्शन 44A बोलता है। टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी of the decree shall be filed a certificate from such superior court stating the extent, if any, to which the decree has been satisfied or adjusted, and such certificate shall for the purpose of proceedings be conclusive proof. कई बार क्या होता है, मान लीजिए डिग्री है 50 लाख रुपए की, अब उस बंदे की प्रॉपर्टी एक से ज्यादा जगह सिचुएटेड है, कहीं 20 लाख की है, कहीं 10 लाख की है। ठीक है, तो अब जितनी वो डिग्री सेटिस्फाई हो गई, मान लो 50 लाख में से मान लो 20 लाख रिकवर हो गए, ठीक है ना, तो उतना सेटिस्फेक्शन उस पर एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है। टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री शैल बी फाइल्ड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सच सुपीरियर कोर्ट स्टेटिंग द एक्सटेंट कि भाई इतनी ये सेटिस्फाइड या एडजस्टेड हो चुकी है। ठीक है, तो उसके लिए वो कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। मान लो 50 लाख की डिग्री थी, 20 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं सुपीरियर कोर्ट से, वो सर्टिफिकेट लगा देगा जी 20 लाख रिकवर हो चुके हैं, और वो कंक्लूसिव प्रूफ उसका मान लिया जाएगा। ठीक है, बाकी निचले वाले दूसरे कोर्ट को रिकवर करने जहां पर वो भेजी गई है। The provisions of section 47 shall, as from the filing of the certified copy of the decree, apply to the proceedings of a district court executing a decree under this section, and the district court shall refuse execution of any such decree if it is shown to the satisfaction of the court that the decree falls within any of the exceptions specified in clauses A to F of section 13. ठीक है, तो अगर कोई एक्सेप्शंस में फॉल करती है, ये एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन जो है A to F में, ये बेसिकली फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है भाई, फॉरेन जजमेंट्स कई ऐसी हो सकती हैं, अगर वो इंडिया में पास होती, अगर इंडिया में वैसा सूट फाइल होता तो वो सस्टेन ना करती। मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई अवॉइडेंस ऑफ एनी लॉ है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि ये सस्टेन नहीं करेगा। हमारा यहाँ पर सेक्शन 13 कोई ब्रीच ऑफ लॉ है, ठीक है ना, जो वहां पर परमिटेड है, कोई ऐसी चीज हो सकती है ना कि वहां पर परमिटेड हो लेकिन हमारे यहाँ परमिटेड ना हो। ठीक है, या फिर ये है सेक्शन 13 में पढ़ के बता देता हूँ आपको, उसमें ये है कि वहां पर कोई कंपिटेंट कोर्ट के जुडिक्शन नहीं पास की हो, या मेरिट्स ऑफ द केस पर डिग्री ना पास हुई फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो अगर ये बता दिया जाएगा कि अगर ये डिग्री इन एक्सेप्शंस में फॉल करती है तो फिर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल रिफ्यूज एक्सिक्यूशन ऑफ सच डिग्री। ठीक है, ये है। या फिर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस, ठीक है, वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, वेयर इट सस्टेन्स ए क्लेम फाउंडेड ऑन ए ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो उनके ये इन एक्सेप्शंस में अगर फाइल करती है तो एक्सिक्यूशन नहीं होगा इसका। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी means any country or territory outside India which the central government may by notification in the official gazette declare to be a reciprocating territory for the purposes of this section, and superior courts with reference to any such territory means such courts as may be specified in the said notification। ठीक है, दोनों नोटिफिकेशन में बताए जाएंगे रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी भी और सुपीरियर
कोर्ट्स में। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? डिक्री विद रेफरेंस टू ए सुपीरियर कोर्ट मीन्स एनी डिक्री और जजमेंट ऑफ सच कोर्ट अंडर विच ए सम ऑफ मनी इज पेएबल not being a sum payable in respect of taxes or other charges of a like nature or in respect of a fine or other penalty, ठीक है, but shall in no case include an arbitration award even if such an award is enforceable as a decree or a judgment। क्या मतलब है? तो डिक्री जो है विद रेफरेंस टू सुपीरियर कोर्ट, इट मींस एनी डिक्री और जजमेंट ऑफ सच कोर्ट अंडर विच सम ऑफ मनी इज पेएबल, ठीक है। नॉट बीइंग ए वो टैक्सेस या वो नहीं होना चाहिए या फाइन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट बीइंग ए सम पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस और अदर चार्जेस ऑफ ए लाइक नेचर और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फाइन और अदर पेनल्टी, बट शैल इन नो केस इंक्लूड एन आर्बिट्रेशन अवार्ड इवन इफ सच एन अवार्ड इज एनफोर्सेबल एज ए डिक्री और जजमेंट। Execution of decrees outside India, ठीक है। So much of the foregoing sections of this part as empower court to send decree, ठीक है ना। तो आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं। आउटसाइड इंडिया में क्या होता है कि जो स्टेट टू विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर्ड दिस सेक्शन टू अप्लाई, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से ये बता सकते हैं कि ये जो प्रोविजंस हैं ये कौन से कोर्ट्स पर अप्लाई होंगे इंडिया से बाहर, ठीक है। सेक्शन 60 प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री। अब कौन सी प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट है एंड सेल है इन एक्सिक्यूशन ऑफ ए डिक्री, ठीक है। लैंड्स, हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, government securities, bonds or other securities for money, debts, shares in a corporation, and save as hereinafter mentioned all other saleable property, movable हो चाहे immovable हो, belonging to the judgment debtor or over which or the profits of which he has a disposing power which he may exercise for his own benefit, ठीक है। चाहे उसके नाम में हो या उसके पास पावर हो, ठीक है। He has a disposing power which he may exercise for his own benefit, whether the same be held in the name of the judgment debtor or by another person in trust for him or on his behalf, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल है। कौन कौन सी नहीं है वो यहाँ दे रखी है। पहली, एक तो कोई नेसेसरी वेयरिंग एपरल है, कोई कुकिंग वेसल्स है, बेड सेट, बेडिंग्स है और जजमेंट डेटर, ठीक है। His wife and children and such other personal ornaments, ठीक है। कोई मंगलसूत्र वगैरह है जो in accordance with religious uses cannot be parted with by any woman, ठीक है। पहला तो ये। दूसरे एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस है बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। भाई उनके कोई टूल्स हैं, मान लो हल है, ठीक है। Where the judgment debtor is an agriculturist, his implements of husbandry and such cattle and seed grain एज में इन दी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी नेसेसरी, ठीक है। मान लो बैल है कोई, ठीक है, या उसके पास कोई सीड ग्रेन्स है जिससे कि वो अपना रोटी कमाता है, ठीक है। या फिर ये है कि भाई एंड सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज मे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी फ्री फ्रॉम लायबिलिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन। आगे दिया जाए कि भाई क्या क्या इसमें फ्री हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेयरिंग एपरल वगैरह आ गए पहले केस में। दूसरे में आ गए टूल्स ऑफ आर्टिजन और उसके कैटल, इंप्लीमेंट्स, सीड ग्रेन्स वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स विद द मटेरियल्स एंड द साइट्स देयरऑफ एंड द लैंड इमीडिएटली अपॉर्टेनेट देयरटू एंड नेसेसरी फॉर देयर एंजॉयमेंट बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरिस्ट या और ए लेबरर ऑफ ए डोमेस्टिक सर्वेंट एंड ऑक्यूपाइड बाय हिम, ठीक है। तो ये चीजें भी आप अटैच नहीं कर सकते। Books of accounts, a mere right to sue for damages cannot be attached. Any right of personal service, ठीक है। Stipends and gratuities allowed to pensioners of the government or of a local authority, ठीक है। तो ये भी जो है, जो पेंशनर है उनके जो स्टाइपेंड है या जो ग्रेचुटी अलाउड है, ठीक है, उसको भी आप अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। या कोई सर्विस फैमिली पेंशन वगैरह मिल रही है उसको भी आप अटैच नहीं कर सकते। उसके बाद में वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स वेदर पेएबल इन मनी और इन काइंड, इसको भी आप अटैच नहीं कर सकते। सैलरी, सैलरी में क्या है, दो पोर्शन है। पहला एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज
एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, इतना आप अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। अदर देन ए डिक्री फॉर मेंटेनेंस, डिक्री फॉर मेंटेनेंस में ये भी अटैच हो सकता है, बट अदर डिक्रीज में आपको पहले 1,000 रुपये छोड़े जाएंगे और जो बाकी बचा उसका 2/3 छोड़ा जाएगा। उसको भी रोटी पानी खानी है ना, सारा अटैच कर दोगे तो रोटी कहाँ से आएगा बेचारा। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ द सैलरी हैज इज लायबल टू अटैचमेंट हैज बीन अंडर अटैचमेंट, एक मान लो पहले ही अटैचमेंट हो चुकी, ठीक है, वेदर कंटिन्यूअसली और इंटरमीडिएटली फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, 24 महीने तक अटैच चल रही है सैलरी। कई लोगों को क्या होता है, सैलरी अटैच हो जाती है, सैलरी दूसरे आदमी को दे दी जाती है कि भैया ऐसा है, इसकी मान लो सैलरी है 10,000 रुपये, 10,000 में से पहले तो 1,000 छोड़ दो और बाकी 2/3 छोड़ दो, ठीक है। 2/3 में कितने बने आपके 6,000 रुपये, तो 7,000 रुपये इसके लिए छोड़ दो, 3,000 रुपये इसकी सैलरी अटैच कर दो, 3,000 रुपये हर महीने वो दूसरे को देते रहेंगे जिसको देनी है। लेकिन मान लो 24 महीने तक ये अटैच्ड है, ठीक है ना, तो फिर 12 महीने छोड़ा जाएगा, 12 महीने इससे एग्जम्प्ट रहेगी ये। एंड वेयर सच अटैचमेंट हैज बीन मेड इन एक्सिक्यूशन ऑफ वन एंड द सेम डिक्री shall after the attachment has continued for a total period of 24 months be finally exempt from attachment in execution of that decree, ठीक है। अगर एक ही अटैचमेंट है तो उसमें 24 मंथ्स के बाद वो फिर फ्री हो जाएगी। 1/3 ऑफ द सैलरी इन एक्सिक्यूशन ऑफ एनी डिक्री फॉर मेंटेनेंस, तो इसमें 1/3 छोड़ना है आपको, उसमें क्या छोड़ना था 1,000 प्लस 2/3, यहाँ छोड़ना है 1/3। उसके बाद पे एंड अलाउंसेस ऑफ पर्सन टू हुम दी एयरफोर्स एक्ट और आर्मी एक्ट और नेवी एक्ट अप्लाइज, ठीक है, तो ये अटैच नहीं हो सकती। ऑल कंपल्सरी डिपॉजिट्स एंड अदर सम्स इन और डिराइव्ड फ्रॉम एनी फंड टू विच दी प्रोविडेंट फंड अप्लाइज, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सारे इसमें अटैच नहीं हो सकते। ऑल मनी इज पेएबल अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द जजमेंट डेटर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ ए लेसी ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग टू विच द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ रेंट्स एंड एकोमोडेशन अप्लाई, ठीक है। जो एक लेसी का राइट है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, ठीक है, जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, तो वो भी अटैच नहीं हो सकता। एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एमोलुमेंट्स, ठीक है, ऑफ एनी servant of the government or of any servant of a railway company or local authority which the appropriate government may by notification in the official gazette declare to be exempt from attachment any subsistence grant or allowance made to any such servant while under suspension, ठीक है। any expectancy of succession by survivorship or other merely contingent or possible right, ठीक है, कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन है कि मुझे सक्सेशन में कुछ मिल जाएगा, तो वो चीज अटैच नहीं हो सकती, ठीक है, या सिर्फ कोई कॉन्टिजेंट या पॉसिबल राइट है तो वो अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस अटैच नहीं हो सकता। एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय एनी इंडियन लॉ टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम लायबिलिटी टू अटैचमेंट और सेल इन एक्सिक्यूशन ऑफ ए डिक्री, ठीक है, या वेयर द जजमेंट डेटर इज ए पर्सन लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, अगर उसको लैंड रेवेन्यू इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो अगर कोई उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, which under any law for the time being applicable to him is exempt from sale for the recovery of an arrear of such revenue, तो वो भी अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब टोटल एमोलुमेंट्स एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंसेस डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, कैंटोनमेंट अथॉरिटी, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। वेजेस में इट इंक्लूड्स बोनस एंड लेबर इंक्लूड्स स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरिस्ट मींस ए पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड पर्सनली and who depends for his livelihood mainly on the income from agricultural land, whether as owner, tenant, partner or agricultural laborer, ठीक है। और एग्रीकल्चरिस्ट जो है ये कब मान लिया जाएगा कि he is cultivating the land personally, पहला if he cultivates land by his own labor or by the labor of any member of his family, तीसरा by servants or laborers on wages payable in cash or in kind not being as share of the produce, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर उसको शेयर ऑफ प्रोड्यूस देने का वायदा है तो फिर वो इस एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। ही विल नॉट बी डीम्ड टू बी कल्टिवेटिंग द लैंड पर्सनली।
या तो खुद कल्टीवेट करता हो या उसके फैमिली मेंबर हो, या फिर सर्वेंट्स या लेबरर्स है तो उनको वेजेस पेबल होनी चाहिए कैश या काइंड में, ठीक है। शेयर ऑफ प्रोड्यूस ऑफर नहीं होना चाहिए। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम, क्योंकि पुराना लॉ है ना भाई, तो 1908 का लॉ है, उस हिसाब से बनाया गया है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एन एग्रीमेंट बाय व्हिच ए पर्सन एग्रीज टू वेव द बेनिफिट ऑफ एनी एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी वॉइड, ठीक है। तो कोई ऐसा एग्रीमेंट बाय व्हिच ए पर्सन एग्रीज टू वेव द बेनिफिट ऑफ एनी एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन विल बी वॉइड, ठीक है। Nothing in this section shall be deemed to exempt houses and other buildings with the materials and the sites thereof and the lands immediately appurtenant thereto from attachment or sale in execution of decrees for rent of any such house, building, site or land, ठीक है। आगे देखते हैं पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सेक्शन 61 ये कहता है कि भाई अगर आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अटैच करना है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना एक ऑर्डर इशू कर सकती है, जनरल या स्पेशल। उसमें ये कहा गया भाई इतनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का इतना पार्ट आप छोड़ दो, या एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, जो उसको लगता है कि भाई अगली फसल तक के लिए जरूरी है और उसकी सपोर्ट के लिए जरूरी है, ठीक है ना, तो उतना वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। फिर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ड्वेलिंग हाउस, अगर ड्वेलिंग हाउस को आपको सीज करना है तो क्या होगा? पहला, एक तो ये कि सनसेट के बाद आप नहीं जा सकते, बिफोर सनराइज नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरा ये कि बाहर का दरवाजा आप नहीं तोड़ सकते। नो आउटर डोर ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन ओपन अनलेस सच ड्वेलिंग हाउस इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर, ठीक है। एंड ही रिफ्यूजेस और इन एनी वे प्रिवेंट्स एक्सेस देयरटू, ठीक है। भाई जो जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी में है और अगर वो मना करता है तब तो आप तोड़ सकते हो, ठीक है, बट अदरवाइज आप नहीं तोड़ सकते। बट व्हेन द पर्सन एक्सिक्यूटिंग एनी सच प्रोसेस, आप एक बार आप अंदर घुस गए फिर आप अंदर के ताले तोड़ सकते हो, ठीक। इसका क्या मतलब है? इसके 2-3 मतलब है। पहला, नो आउटर डोर ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन ओपन अनलेस ड्वेलिंग हाउस इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर। अगर जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी में तभी आप तोड़ सकते हो, अगर जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी में नहीं है, जजमेंट डेटर आगे किराए पे दे रखा है, तो ताला नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है। फिर कोर्ट की परमिशन चाहिए। तीसरा, वेयर रूम इन अ ड्वेलिंग हाउस इन दी, कोई पर्दानशीन वोमेन है, तो पर्दानशीन वोमेन में मान लीजिए आप उसको कहोगे भाई आप वहां से निकल जाओ, ठीक है, उसको नोटिस दिया जाएगा और रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, ठीक है, तो आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद भाई आपको पता है कि वहां पर जो है कुछ ज्वेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने अटैच करने हैं, अब किसी ने बहाना बना दिया जी वहां तो पर्दानशीन वोमेन है जी, ठीक है, तो आप उसमें आप आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस आप वहां पर एंटर कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ सीजिंग द प्रॉपर्टी। ये मैंने हाईलाइट किया है, यूजिंग एट द सेम टाइम एवरी प्रिकॉशन कंसिस्टेंट विद दीज प्रोविजंस टू प्रिवेंट इट्स क्लैंड स्टाइल रिमूवल, कि ऐसा नहीं कि उसको पीछे से वो वहां से जो हीरे जवाहरात हैं वही निकाल लिए जाएं, ये दिखाने के लिए भाई वहां पर्दानशीन वोमेन है, वहां कोई एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, वो कमरा बंद है और पीछे से कोई सारा प्रॉपर्टी निकाल करके जा रहा है, तो उस केस में आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के बाद उस रूम में एंटर कर सकते हो। अगला, प्रॉपर्टी सेक्शन 63 कहता है प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स, ठीक है। अब where property not in the custody of any court is under attachment in execution of decrees of more courts than one, एक से ज्यादा कोर्ट की कस्टडी में है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? The court which shall receive or realize such property and shall determine any claim thereto, any objection to the attachment thereof shall be the court of the highest grade, ठीक है। Or where there is no difference in grade between such courts, the court under whose decree the property was first attached, ठीक है। Where property not in the custody of any court is under attachment in execution of decrees of more courts than one, ठीक है, एक से ज्यादा कोर्ट्स के पास एक्सिक्यूशन के लिए डिग्री है, तो the court which shall receive or realize such property shall determine any claim, तो उस प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम या कोई ऑब्जेक्शन कौन एंटरटेन करेगा? कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड, ठीक है। या अगर कोई डिफरेंस नहीं है, सारे बराबर के कोर्ट हैं,
तो वहां पर जहां पर अंडर हुज द कोर्ट अंडर हुज डिक्री द प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच, तो जहां पर सबसे पहले अटैच की गई थी वो उस क्लेम के बारे में, उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्लेम या ऑब्जेक्शन को सुनेगा। Nothing in this section shall be deemed to invalidate any proceeding taken by a court executing one of such decrees। अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग हो भी जाती है तो वो कुछ उससे इनवैलिडेट नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि प्रोसीडिंग्स टेकन बाय ए कोर्ट डज नॉट इंक्लूड एन ऑर्डर अलाउइंग टू ए डिक्री होल्डर हु हैज परचेज्ड प्रॉपर्टी एट ए सेल held in execution of a decree set off to the extent of the purchase price payable by him। इसका क्या मतलब है कि प्रोसीडिंग टेकन बाय कोर्ट डज नॉट इंक्लूड एन ऑर्डर अलाउइंग टू ए डिक्री होल्डर, तो इसका मतलब एक कोर्ट अलाउ कर सकता है डिक्री होल्डर को हु हैज परचेज्ड प्रॉपर्टी एट अ सेल हेल्ड इन एक्सिक्यूशन ऑफ ए डिक्री सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ द परचेज प्राइस पेएबल बाय हिम। ठीक है, तो वो परचेज प्राइस तक उसको सेट ऑफ अलाउड है, डिक्री होल्डर ही प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ठीक है, डिक्री होल्डर को तो वो पैसे मिल नहीं थे। ठीक है, तो प्राइवेट अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। एक बार प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो आप उसको प्राइवेटली अलाइनेट नहीं कर सकते, कोई प्राइवेट ट्रांसफर, डिलीवरी ये वगैरह आप नहीं कर सकते। नेचुरली इट शैल बी वॉइड। ठीक है, एज अगेंस्ट ऑल क्लेम्स एनफोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट, ये सेक्शन 64 कहता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड और ऑफ एनी इंटरेस्ट मेड इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। जो पहले से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर था अटैचमेंट से पहले तो वो इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सच ट्रांसफर और डिलीवरी एंटर्ड इनटू एंड रजिस्टर्ड बिफोर द अटैचमेंट, रजिस्टर्ड भी है इसमें वर्ड। ठीक है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मान लो पहले रजिस्ट्री हो चुकी है उसकी अटैचमेंट से पहले तो वो इफेक्ट नहीं होगी, अदरवाइज बाद में आप नहीं ट्रांसफर कर सकते एक बार अटैचमेंट ऑर्डर इशू हो जाए तो। ये सेक्शन 64 कहता है। Explanation: For the purpose of this section, claims enforceable under an attachment includes claims for the ratable distribution of assets। तो ratable distribution क्या है इसको भी देख लेते हैं। Distribution of assets, ये section 73 बताता है कि proceeds of execution sale to be ratably distributed among decree holders। ठीक है, where assets are held by a court, एक कोर्ट के पास एसेट, एक से ज्यादा आदमी है जिनके पास डिक्री है। ठीक है, where assets are held by court and more person than one have before the receipt of such assets made application to the court for the execution of decrees for the payment of money passed against the same judgment debtor। देने वाला एक है, लेने वाले चार हैं। ठीक है, and have not obtained satisfaction thereof, the assets after deducting the cost of realization shall be ratably distributed among all such persons। तो इनके में रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए लेने हैं, 4 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। ठीक है, 40% सबको मिल जाएगा। ये रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किनको मिलेगा? जिन्होंने अप्लाई किया है फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्रीज बिफोर द रिसीट ऑफ सच एसेट्स। ठीक है, प्रोवाइडेड पहला वेयर एनी प्रॉपर्टी सोल्ड सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज और चार्ज। अगर उस प्रॉपर्टी पर पहले मॉर्टगेज भी था तो क्या होगा? द मॉर्टगेजी जिसके फेवर में मॉर्टगेज की गई है या इनकम्बरेंसर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू शेयर इन एनी सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम सच सेल। अगर सेल में कई बार क्या होता है सरप्लस भी मिल जाता है। ठीक है ना, तो उसमें वो मॉर्टगेजी एंटाइटल नहीं होगा। नेचुरली उसको तो अपने मॉर्टगेज मनी से मतलब है। ठीक है, वेयर एनी प्रॉपर्टी liable to be sold in execution of a decree is subject to a mortgage or charge। ठीक है, the court may with the consent of the mortgagee or encumbrancer order that the property be sold free from the mortgage or charge, giving to the mortgagee or encumbrancer the same interest in the proceeds of the sale as he had in the property sold। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उस केस में क्या होगा कि कंसेंट ले लेंगे मॉर्टगेजी से कि भाई प्रॉपर्टी को हम फ्री ऑफ मॉर्टगेज बेच देते हैं। ठीक है, और जितने पैसे मान लो आपने लेने थे जिस प्रॉपर्टी में उतना आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा बिकने पर भी। ठीक है, गिविंग टू द मॉर्टगेज, भाई उसको तो अपने पैसे लेने, गिविंग टू द मॉर्टगेज और इनकम्बरेंसर द सेम इंटरेस्ट इन द प्रोसीड्स ऑफ द सेल एज ही हैड इन द प्रॉपर्टी सोल्ड। ठीक है, ये कब होता है? नॉर्मली तब होता है जब प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होती है, मॉर्टगेज कम अमाउंट की होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी बिकनी है 20 लाख की, उसकी मॉर्टगेज है 10 लाख की, तो उसको कहते हैं भाई ठीक है हम फ्री ऑफ मॉर्टगेज भेज देते हैं।
आपको 10 लाख रुपए दे देंगे जब उससे मिलेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्री ऑफ मॉर्गेज भेज देते हैं, ठीक है। Where any immovable property is sold in execution of a decree ordering its sale for the discharge of an encumbrance thereon, the proceeds of sale shall be applied. कैसे अप्लाई होंगे? First, in defraying the expenses of the sale. Secondly, in discharging the amount due under the decree. ठीक है। Third, in discharging the interest and principal monies due on subsequent encumbrances. ठीक है। कई बार क्या होता है कि subsequent encumbrances, तो where any immovable property is sold in execution of a decree ordering its sale for the discharge of an encumbrance thereon, the proceeds of sale, इस तरह से अप्लाई होगा। ये ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे पहले जो एक्सपेंसेस हुए सेल पर वो, उसके बाद में जो अमाउंट ड्यू अंडर डिक्री था वो डिस्चार्ज होगा, फिर उसके बाद में जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है ऑन सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस, ठीक है। और फोर्थली जो है इट विल बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द होल्डर्स ऑफ डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी अगेंस्ट द जजमेंट डेटर हु हैव प्रायर टू द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी अप्लाइड टू द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री ऑर्डरिंग सच सेल, ठीक है, एंड हैव नॉट ऑब्टेन्ड सेटिस्फैक्शन देयरऑफ, ठीक है। उसके बाद में रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जो बाकी डिक्री होल्डर है। Where all or any of the assets liable to be ratably distributed under this section are paid to a person not entitled to, किसी ऐसे आदमी को मिल गया जिसको एंटाइटल नहीं था वो वापस कर देगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अगला क्या कहता है? अगला कहता है जी नथिंग इन दिस सेक्शन अफेक्ट्स एनी राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। आगे उसके बाद सेक्शन 75 कहता है पावर ऑफ कोर्ट्स टू इशू कमीशंस। बहुत जगह क्या होता है कि कोर्ट एक कमीशन इशू कर देता है, जैसे इमरजेंसी में भी हमने देखा था शाह कमीशन, इस तरह से। वो कमीशन क्या होते हैं बेसिकली ना, कोई पर्टिकुलर इशू को एग्जामिन करने के लिए या कोई टेक्निकल मैटर है मान लो, ठीक है, तो एग्जामिन एनी पर्सन है, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन है, तो मान लो कोई गैस रास्ते हो गई, ठीक है ना, तो उसमें कमीशन इशू हो गया, इमरजेंसी में कमीशन इशू हो गया। इस तरह से जो मेजर इशूज हैं जहाँ पर क्या है कि कोर्ट एक अलग बंदे को असाइन कर देता है, एक कमीशन इशू कर देता है। किसी पर्सन का एग्जामिनेशन है, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन है, कोई एग्जामिनेशन या एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स है, कोई पार्टीशन करना है, कोई साइंटिफिक टेक्निकली एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करना है, टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, ठीक है, एंड विच इज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट एंड टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्शन, तो उसके लिए कमीशन इशू कर सकते हैं। सेक्शन 75 ये कहता है। कमीशन टू अनदर कोर्ट, सेक्शन 76 ये कमीशन टू अनदर कोर्ट की बात करता है। जैसे डिग्री आप दूसरे कोर्ट में भेज सकते हो, ऐसे कमीशन भी। तो कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग ए हाई कोर्ट सिचुएटेड इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच द कोर्ट ऑफ इशू इज सिचुएटेड एंड हैविंग जुरिसडिक्शन इन द प्लेस इन विच द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड रेजिड्स, ठीक है। अब वो आदमी वहां पर रहते हैं तो एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक कोई क्रिमिनल ट्राइब है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, तो उनको एग्जामिन करने के लिए वहां से वही के कोर्ट को ऑथराइज कर देते हैं कई बार, ठीक है। Every court receiving a commission for the examination of any person under subsection 1 shall examine him, ठीक है ना, तो ऐसे एग्जामिन करेगा जैसे इसने खुद ही ऑर्डर किया था, और बाद में जो भी उसके एविडेंस होंगे वो उस कोर्ट को दे देगा जिसने इशू किया था, ठीक है। अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज अदरवाइज डायरेक्टेड इन विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न्ड इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है, सिंपल है। अगला लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। ये इंडिया में तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्ट्स हैं उनको तो लेटर ऑफ आप कमीशन दे सकते हो, ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है बाहर की कंट्रीज के लिए, ठीक है। कोई आदमी इंडिया में नहीं रहता तो वहां पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा। फिर कमीशंस इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स, ये क्या मतलब है? सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज बीन प्रेस्क्राइब्ड द प्रोविजंस एज टू द एक्जीक्यूशन एंड रिटर्न्स ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस शैल अप्लाई टू कमीशंस इशूड बाय और एट द इंस्टेंस ऑफ courts situated in any part of India to which the principles of this code do not extend, courts established and controlled by authority of the central government outside India, ठीक है, और courts of any state or country outside India। तो उस केस में क्या होगा, बाहर वाले कोर्ट भी इशू कर सकते हैं कि भाई आप इन लोगों का एग्जामिनेशन कर लो, कोई वहां से पोलैंड से क्राइम करके यहाँ पर आ गया, इस तरह से। ऑर्डर 21 ये तो थे हमारे सेक्शन। इसके बाद है ऑर्डर। ये ऑर्डर में बेसिकली क्या है कि ये बार बार एक्सिक्यूशन के बारे में हमने क्यों पढ़ा, एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्रीज, ये इसलिए पढ़ा कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की होती है वही उसके लिए एक्सिक्यूशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब सिर्फ उसी केस में दूसरे कोर्ट को कह सकता है जिस केस में वो कोर्ट
बाहर सिचुएटेड है, दूसरे स्टेट में सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो इट इज ओनली द एक्सिक्यूशन विच रिवील्स एंड सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिक्रीज टू बी पास्ड एट द पेडेस्टल ऑफ द कोर्ट एंड द सैंक्टिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसीलिए डिक्रीज आर टू बी एक्सिक्यूटेड विद फोर्स, ठीक है ना, ताकि जो डिक्री होल्डर है, वरना तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट है ना, हैविंग ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिक्लेरेशन ऑफ हिज राइट्स। भाई डिक्री होल्डर क्या है, डिक्री होल्डर में क्या है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, भाई इस आदमी को 50 लाख रुपए लेने हैं, इस बंदे से लेने हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, इमूवेबल है, जो एक्सेप्शंस को छोड़ करके बाकी बेच बाच के जो मिलता है इसको दो, ये होता है, ठीक है ना। तो डिक्री होल्डर के पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद इज अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज राइट्स। ही शुड नॉट फील चीटेड और हेल्पलेस, having earned no fruits of the list got settled by him from the court even after spending decades together, ठीक है। भाई कई दशकों के बाद तो फैसला मिलता है, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, उसके बाद उसको डिक्री मिली, अगर डिक्री एक्सिक्यूट ही ना हो पाए तो फायदा क्या है, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्डर 21 है, ऑर्डर 21 में इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। बेसिकली देख लेते हैं क्या क्या है। पहला तो है एप्लीकेशंस फॉर एक्सिक्यूशन, और क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, फिर स्टे ऑफ एक्सिक्यूशन कैसे होगा, मोड ऑफ एक्सिक्यूशन कैसे होगा, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम्स एंड रेजिस्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, देखो ऐसे है, इसमें तो 100 से ज्यादा रूल्स हैं हमारे, ठीक है ना। ऑर्डर 21 जो है शायद इसमें 91 के 97 कितने हैं, ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं। तो वो सारे रूल्स तो पढ़ने बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उतने याद रखने में मुश्किल हो जाएंगे। तो मैंने मोटे मोटे रूल्स जो हैं उसको आपके लिए इकट्ठा कर दिया है। 106 है जी, इसमें 106 रूल्स। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है मेथड ऑफ, ये 5 मिनट में खत्म कर देंगे, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इन मनी डिक्री। सबसे पहले एडजस्टमेंट कैसे होगा मनी डिक्री का, सबसे पहले इंटरेस्ट एडजस्ट करोगे, उसके बाद में कॉस्ट, उसके बाद में प्रिंसिपल, unless of course the deposit is indicated to be towards specified dates by the judgment debtor। के बाद जजमेंट डेटर स्पेसिफाई कर देता है भाई ऐसे ऐसे इसको एडजस्ट करना, while making the deposit and intimating the decree holder of his intention, ठीक है। अगर कुछ नहीं बताया तो ये ऑर्डर है, ठीक है, अगर बताया तो जो ऑर्डर है उससे आपसे एडजस्ट हो। रूल 16 क्या कहता है, रूल 16 ये कहता है एप्लीकेशन फॉर एक्सिक्यूशन बाय द ट्रांसफरी, द असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द डिक्री मेड, ठीक है। असाइनमेंट कैसे होगा और ट्रांसफर अगर क्या होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर असाइनमेंट हो गया है डिक्री का, डिक्री भी जो है एक किस्म से एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि असाइनमेंट अगर कर दिया डिक्री को तो इट वुड रिजल्ट इन ए कंप्लीट इक्विटेबल असाइनमेंट प्रोवाइडेड नोटिस ऑफ असाइनमेंट हैज बीन गिवन टू द जजमेंट डेटर एंड द डिक्री होल्डर। तो जिसके फेवर में डिक्री असाइन की गई है वो दोनों पार्टीज को नोटिस देगा, जजमेंट डेटर को भी और डिक्री होल्डर को भी। तो ये कंप्लीट इक्विटेबल असाइनमेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। रूल 17 क्या कहता है कि प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, कि आपके पास एक्सिक्यूशन के लिए एक एप्लीकेशन आ गई तो क्या प्रोसीजर है, क्या कहता है, ये कहता है जी द कोर्ट हैविंग सेटिस्फाइड इटसेल्फ रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ रूल्स 11 to 14 पर्टेनिंग, रूल 11 to 14 क्या है ये मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है। पर्टेनिंग टू डिस्क्रिप्शन है, उसमें आइडेंटिफिकेशन है कि सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट लेना है आपको रजिस्ट्रार से, ठीक है ना। द कोर्ट में डिसाइड प्रोविजनली द अमाउंट, ठीक है। भाई किसी कोर्ट के पास एप्लीकेशन आ गई फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, सबसे पहले तो वो ये सेटिस्फाई करेगा कि भाई रूल 11 से 14 कंप्लाई भी हुए कि नहीं। रूल 11 to 14 क्या कहते हैं, रूल 11 to 14 कहते हैं भाई डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, कौन सी प्रॉपर्टी जिसको अटैच करना है, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, अगर कोई रजिस्ट्रार से जो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए उसका एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट में डिसाइड प्रोविजनली द अमाउंट, ठीक है, एंड मेक एन ऑर्डर फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर द अमाउंट सो प्रोविजनली डिसाइडेड, ठीक है। ये कई बार पता क्या होता है इसमें, ये भी होता है कि एक डिक्री मान लो आ गई 50 लाख रुपए की, अब उस बंदे की प्रॉपर्टी है 2 करोड़ रुपए की, ठीक है ना, तो वो फिर पार्टी सेल करते हैं, पूरा नहीं सेल करते, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है इसमें जी 28 कहता है बाइंडिंग फोर्स ऑफ द डिक्री of the court which the decree was passed on the court to which it is sent for execution,
ठीक है, मतलब दोनों कोर्ट के सेम बाइंडिंग फोर्स है। जिस कोर्ट ने डिग्री पास की, जिसने एक्सिक्यूट की, क्योंकि पहले ये लिखा गया है कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास की वही एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो 28 से इसको कवर किया गया है कि जिसने कोर्ट ने डिग्री पास की और जिसने एक्सिक्यूट करी उसके बाद सेम पावर है, ठीक है। 29 क्या कहता है, सूट पेंडिंग इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द होल्डर ऑफ ए डिग्री ऑफ सच कोर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डिग्री वाज पास्ड, ठीक है। एक डिग्री होल्डर है, उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है। केस किसने किया हुआ है, उस बंदे ने किया हुआ है जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास की गई है, ठीक है, मतलब देनदार ने केस किया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, ये रूल 29 बताता है, द कोर्ट में ऑन सच टर्म्स एज टू सिक्योरिटी और अदरवाइज एज ए थिंग फिट स्टे एक्सिक्यूशन ऑफ द डिग्री। वो ये कहेगा भाई जब तक ये पेंडिंग सूट डिसाइड नहीं हो जाता तब तक हम एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। एक इसमें वर्ड जो सच कोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है। सच कोर्ट क्या है, सच कोर्ट कहता है इट मीन्स द कोर्ट इन विच द सूट इज पेंडिंग, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सूट मस्ट बी वन नॉट ओनली पेंडिंग इन दैट कोर्ट बट ऑल्सो अगेंस्ट द होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है। तो दैट अपेयर्स टू बी द प्लेन मीनिंग, मतलब ये एक कोर्ट में डिग्री एक्सिक्यूशन के लिए पहुंची, ठीक है। अब डिग्री तो किसके अगेंस्ट में एक्सिक्यूट करनी है, जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में। जजमेंट डेटर ने ही डिग्री होल्डर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर रखा उसी कोर्ट में, ठीक है। तो उस कोर्ट, ये रूल ये कहता है कि उस केस में इस डिग्री का जो एक्सिक्यूशन है उसको होल्ड किया जा सकता है, ठीक है, उसको स्टे कर देंगे। अगला है जी इसमें रूल 35। रूल 35 क्या कहता है, रूल 35 कुछ अटैचमेंट की बात करता है कि अटैचमेंट ऑफ शेयर ऑफ को पर्सनल प्रॉपर्टी एंड लिमिटेशन टू टेक पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है। जहां पर डिग्री है फॉर जॉइंट पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सच पोजेशन will be delivered by affixing a copy of the warrant in some conspicuous place on the property and proclaiming by beat of drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर एक नोटिस चिपका दिया जाएगा या फिर बाय बीटिंग ऑफ ड्रम प्रोक्लेमेशन किया जाएगा एट सम कन्वीनियंट प्लेस। ये बात करता है जब आपने अटैचमेंट करना है शेयर ऑफ को पर्सनल प्रॉपर्टी। उसके बाद अगला रूल है जी हमारा रूल 35(3). रूल 35(3) क्या कहता है, रूल 35(3) कहता है एक्सटेंट ऑफ फोर्स टू बी यूज्ड टू टेक पोजीशन, ठीक है। कोई पर्दानिशीन वुमेन है विच इज नॉट अपीयरिंग इन पब्लिक, ठीक है, आप उसको रीजनेबल परमिशन दे सकते हो, उसके बाद में आप ताला भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रूल 35(3) एंड रूल 97 कंप्लेंट फॉर रेजिस्टेंस एंड एक्सिक्यूशन, ठीक है। तो इस केस में क्या है, दिस टू रूल्स प्रोवाइड ए राइट टू डिग्री होल्डर टू कंप्लेन अगेंस्ट ए पर्सन जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन एक्सिक्यूशन ऑफ डिग्री। आगे देखते हैं रूल 41 अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो इसमें जजमेंट डेटर का अटेंडेंस एग्जामिनेशन हो सकता है और सिविल प्रिजन हो सकता है फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ डिग्री रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर 3 months और इन केस ऑफ डिसओबीडियंस बाय द जजमेंट डेटर, ठीक है। तो अगर कोई जजमेंट डेटर एक्सिक्यूशन ऑफ डिग्री में कोई डिसओबीडियंस करता है या डिग्री रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर 3 months तो उसको 3 महीने की जेल भी हो सकती है, ठीक है। रूल 58 क्या कहता है, अटैचमेंट ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी इज अंडर अटैचमेंट इन अनदर मनी सूट एंड द मॉर्टगेजी इज नॉट इन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है कि मॉर्टगेजी के पास पोजेशन होता है, कई बार पोजेशन नहीं होता। जैसे हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज पढ़े होंगे इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है ना। तो इफ द प्रॉपर्टी इज अंडर अटैचमेंट इन अनदर मनी सूट and the mortgagee is not in actual or constructive possession of the property on that date, then the objection by such objector to such attachment is not maintainable। तो फिर वो ऑब्जेक्शन इसमें नहीं कर सकता अगर उसके पास एक्चुअल पोजीशन नहीं है। तो रूल 89 क्या कहता है कि प्राइमरी कंडीशन प्रेसिडेंट टू सेट असाइड द सेल ऑफ ए मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। इसमें ये होता है कि एक बार प्रॉपर्टी बिक गई उसके बाद भी जजमेंट डेटर उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, ये रूल 89 कहता है।
रूल 89 कहता है कि जो परचेज मनी है उसका 5% और दे दो, ठीक है, क्योंकि ऑक्शन में जिसने परचेज करी, ऑक्शन में मान लो उसने 100 रुपए में परचेज करी, तो आप उसको 105 रुपए दे करके उससे दोबारा ले सकते हो, जजमेंट डेटर को राइट है। तो रूल इंटेंडेड टू कन्फर राइट अपॉन दी जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कौन है? देनदार, जिसने पैसे देने थे। इवन आफ्टर द प्रॉपर्टी सोल्ड, प्रॉपर्टी ऑक्शन हो चुकी, उसके बाद में भी जजमेंट डेटर दोबारा खरीद सकता है। टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ द डिग्री होल्डर एंड टू कंपनसेट द ऑक्शन परचेजर बाय पेइंग हिम 5% ऑफ द परचेज मनी। तो 5% परचेज मनी का उसको दे करके और वो दोबारा उससे खरीद सकता है। रूल 90 क्या कहता है? रूल 90 कहता है कि अदर कंडीशंस वेयर सेल कुड बी सेट असाइड। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जी जहां पर सेल कुड बी सेट असाइड? ये कहता है मेयर टू एस्टैब्लिश इररेगुलरिटी ऑफ फ्रॉड इज नॉट सफिशिएंट टू सेट असाइड द सेल। कि बस जो सेल होती है, ऑक्शन सेल, इनको भी चैलेंज कर दिया जाता है। तो वो ये कहता है कि आप सिर्फ ये कह दो जी इसमें कोई इरेगुलरिटी थी या कोई फ्रॉड था, उससे सेल सेट असाइड नहीं होगी। उसको ये होना चाहिए कि भाई जो सब्सटैंशियल इंजरी हुई है एप्लीकेंट को, कि उसके राइट्स कैसे इन्फ्रिंज हुए हैं, उसके राइट्स कैसे हार्म हुए हैं, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग कहते हैं जी उसके एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो ये कोई ग्राउंड नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई मटेरियल इरेगुलरिटी या फ्रॉड नहीं हो प्रूव हो जाए इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग द सेल, और उसमें भी सब्सटैंशियल इंजरी भी प्रूव करनी पड़ेगी। रूल 92 क्या कहता है? रूल 92 सबसेक्शन 2 कहता है कंडीशंस व्हेन द सेल कुड बी सेट असाइड आफ्टर ऑक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहला एक तो डिपॉजिट हैज टू बी मेड विद इन 30 डेज, और अगर डिपॉजिट आपका 60 डेज में होता है तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पर ये सेल जो है सेट असाइड हो सकती है, ठीक है। इसमें कौन लेता है? बेसिकली वो लेता है जो पुराने वाला, जो जजमेंट डेटर था, ठीक है। 5% तो आपको उसी टाइम जमा कराना है, 30 दिन के अंदर डिपॉजिट कर देना है, और 60 दिन के अंदर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो एनी क्लरिकल और अरिथमेटिक मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द डिपॉजिटर एंड सच डेफिशिएंसी हैज बीन मेड गुड विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। रूल 99 क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी टू एन ऑब्जेक्टर अदर देन द जजमेंट डेटर टू रेज ऑब्जेक्शन क्लेमिंग एनी राइट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम विच ही इज डायरेक्टेड टू बी डिस्पोजेस्ड, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्टर है जो ऑब्जेक्शन रेज करता है कि भाई मेरा भी राइट है, ठीक है ना। तो नॉर्मली द कोर्ट्स फ्रेम द इश्यूज व्हाइल डीलिंग द लिस्ट बिटवीन द पार्टीज, but where the objections raised by the third party are superfluous, then the court can refuse to entertain the same and such objections could summarily be tried, ठीक है। कई बार कोई वैसे ही ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं कि जी मेरा भी इंटरेस्ट है, तो देखा जाएगा कि सुपरफ्लुअस है, अगर सुपरफ्लुअस है तो वहीं पे समरीली उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन में कुछ मेरिट है तो उनको भी सुन लिया जाएगा। देन द कोर्ट कुड डिसाइड दोज ऑब्जेक्शंस आफ्टर सीकिंग रिप्लाई एंड एविडेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। या फिर क्या होता है कि ये हो जाती है सेल, तो उसके बाद में वो कहता है जी मेरा भी राइट है उसमें। तो ये 99 इस बारे में, रूल 99 इस बारे में कहता है, ठीक है जी। रूल 105 क्या कहता है? अगर एप्लीकेंट अपीयर नहीं होता, ठीक है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया, जिसने अप्लाई किया था कि जी मेरा राइट्स इंफ्रिंज हुए हैं, वही नहीं अपीयर होता तो ये पिटिशन डिसमिस हो जाएगी। अगर अपोजिट पार्टी अपीयर नहीं होती तो फिर एक्स पार्टी सुना जा सकता है, ठीक है। 106 क्या कहता है? सेटिंग असाइड ऑर्डर्स पास्ड एक्स पार्टी। अगर कोई एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन ये रूल 105, तो उस केस में क्या होगा? सफिशिएंट कॉज इज शोन। इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन तो एक्स पार्टी ऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है, एंड एप्लीकेशन हैज टू बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर और नॉलेज ऑफ नोटिस, ठीक है। और ऑब्जेक्टर अगर फिर दोबारा अपीयर नहीं होता तो फिर डिसमिसल हो जाएगा। ये है बेसिकली इसमें सारा हमारा सिविल प्रोसीजर कोड। तो एक बेसिक ओवरव्यू इसका जरूरी है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई दूसरे कोर्ट में गई तो क्या होगा, क्या क्या चीज़ अटैच हो सकती है, क्या नहीं अटैच हो सकती, पार्टली सेटिस्फेक्शन कैसे होता है, अगर ऑक्शन हो गई, ऑक्शन होने के बाद भी सेट असाइड हो सकती है, जजमेंट डेटर दोबारा वापस ले सकता है। तो ये सब बातें हैं बेसिकली।